See this. We will continue with the topic where we left yesterday. So we were talking about water potential, solute potential, and the pressure potential. So water potential may we have already discussed that water potential of pure water is going to be zero, and as you add solute in the water potential will become more negative. तो जैसे जैसे सॉल्यूट हम मिलाते जाते हैं वैसे वैसे वाटर पोटेंशियल और ज़्यादा नेगेटिव होता जाता है। और हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया है कि वाटर पोटेंशियल जिसका हाई होता है और किसी और सोल्यूशन का अगर वाटर पोटेंशियल लो होता है तो नेट मूवमेंट जो होता है दैट इज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ठीक है। और जैसे जैसे आप सॉल्यूट मिलाते हो आपका सॉल्यूट पोटेंशियल भी नेगेटिव होता जाता है और वाटर पोटेंशियल भी नेगेटिव होता जाता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। यू नीड टू रिमेंबर दैट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर द वाटर पोटेंशियल and the solute potential both are negative. So I think you are able to see the screen, beta. Okay. So here we have Yes, sir. this is your water potential that was equal to solute potential plus pressure potential, and pressure potential we have discussed that at atmospheric pressure. I think I'll go to PowerPoint only. Just wait. This is better. Okay. So water potential is equal to solute potential plus pressure potential, and at atmospheric pressure that is considered to be zero, so psi p is considered zero. So water potential is actually equal to solute potential. इसको अगर atmospheric pressure पे रख देंगे so this value will turn to be zero. So water potential will be equal to solute potential. Now taking an example, now let's say this is the solution which is separated by, these are two solutions which are separated by membrane. Now let's say this is pure water, and here we have, we have solution will mean what? Solution will mean solute dissolved in solvent, right? Solution will be solute dissolved in solvent. So let's take solvent as water. So let's say see that solvent is water. So we have pure water and we have solution. तो इधर बेटा किसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा? वी हैव डिस्कस्ड मेनी टाइम्स. So यहाँ पे क्या होगा? Water potential of pure water will be, we discussed, in pure water solute potential is zero, pressure potential is zero, so water potential will be zero. And here since it will have the solute, so water potential will be negative. Okay, so यहाँ का water potential will be higher, यहाँ का water potential will be lower. So net migration will be from high water potential to low water potential. ठीक है, net migration होगा high water potential to low water potential. Now imagine that a cell is kept. Okay, the cell is kept in the pure water. Let's say this is the cell which is kept in pure water. So obviously the cell has multiple components, multiple things inside, multiple organelles and all. So because this is a complex solution, so water potential of cell will be lower than the water potential of pure water. So pure water, where water will tend to go in, water will tend to move in the cell. So what happens is once the water goes in the cell, till what time water will keep on going inside till the water potential of cell will be equal to just a minute, till the water potential of cell will be equal to water potential of outside. ठीक है, ये तब तक अंदर जाता रहेगा जब तक दोनों के वाटर पोटेंशियल्स बराबर ना हो जाएं। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जब सेल के अंदर पानी बहुत ज्यादा चला जाता है तो पानी बहुत ज्यादा चला जाता है, और हमने डिस्कस किया है कि जो
पानी की फ्री एनर्जी होती है या जो पानी की एनर्जी होती है, that only will determine water potential. So more and more water is inside, it will exert pressure on the membrane of the cell. Okay, so more is the water, more is the pressure exerted on the membrane of the cell, and this pressure which is exerted by water on the membrane of the cell is known as Turgor pressure. It is known as Turgor pressure. So in the case of plant cell, as you can see, the plant cells, they are they are covered by a rigid cell wall. They are covered by rigid cellulosic cell wall, so they can withstand these pressures. All right, they can withstand these pressures. But in the case of animal cells, okay, in the case of animal cells, since animal cells, they have simply the cell membrane, so they kind of burst when you keep them in some solution which has which has higher water potential than them. ठीक है, so ये होता है. If the same thing you do in a tube, वो भी अभी हम लोग करेंगे. So in that case, what will happen? The volume of this will rise. So when you keep, for example, if you're keeping plant cell here, in case of plant cell, now let's say this is a plant cell. अगर इसी जगह एनिमल सेल रख दोगे, मान लो इसकी जगह हम लोग आरबीसी रख देंगे, तो क्या होगा? आरबीसी हैज मेम्ब्रेन, okay, and the pressure which will be exerted by water from inside, it will lead to bursting of cell, because it cannot withstand very high pressure. So water can exert pressure on the cell in the form of Turgor pressure, and cell wall, because of cell wall, plant cell, they can withstand high Turgor pressure, but because of lack of cell wall, animal cells, they can't withstand high pressures. Okay, so now let's take up another example. So now here, let's say this is an inverted funnel. Can you see? बच्चों दिख रहा है आप लोग को? कैन यू सी? Yes, ma'am. ओके बेटा, बीच बीच में बोलते रहो, बिकॉज आई कांट सी दिस गूगल स्क्रीन एक्चुअली. Yes, ma'am. आई डोंट Yes, नो. ma'am. हाँ बेटा, आई डोंट नो वेदर यू आर देयर और द क्लासरूम, द इंटरनेट कनेक्शन इज गॉन. सो नाउ दिस इज अ फनल. इसको बहुत ध्यान से देखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो नाउ वी हैव प्योर वाटर आउटसाइड. यहाँ पे वी हैव प्योर वाटर. Okay, and here let's say we have sugar solution, and this is a membrane. So from this membrane, water can easily diffuse. Now what happens is, beta, what will be water potential of pure water? Water potential of pure water would be 0. 0. And what will be the water potential of sugar solution? Let's say the Minus water 3. potential of sugar solution is -3. ठीक है, मान लेते हैं. लेट्स से द वाटर, तुम्हें ये तो पता ही है कि अगर सॉल्यूट डिसॉल्व करोगे तो वाटर पोटेंशियल नेगेटिव होगा. Yes, ma'am. ठीक है ना? सो लेट्स से द वाटर पोटेंशियल ऑफ शुगर सोल्यूशन इज -3. ठीक है. सो इन द नॉर्मल कंडीशन, वेयर विल बी नेट माइग्रेशन ऑफ द वाटर फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल. ठीक है बेटा? ठीक है बेटा? Yes, ma'am. तो इसका माइग्रेशन किधर होगा पानी का? इट विल बी Pure water to sugar solution. प्योर वाटर टू शुगर सॉल्यूशन. ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है किसी को? कोई प्रॉब्लम? नाउ व्हाट No, वी ma'am. No, ma'am. ओके, नाउ व्हाट वी डू इज वी हैव एक्सर्टेड अ प्रेशर बाय पिस्टन. ठीक है, दिस प्रेशर इज नियरली, लेट्स से +3 MPa. ओके, सो नाउ वी हैव एक्सर्टेड प्रेशर बाय पिस्टन. अभी तक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, इफ यू कैन रिकॉल.
We talked about this equation. Till now we talked about atmospheric pressure, which was 0. Now we have exerted pressure of by piston. ये push pressure है. So this is push pressure. So the magnitude of the push pressure will be positive. Okay, now coming back again to the equation, psi W is equal to psi S plus psi P. So you have minus 3 and you have plus 3. Can you see, beta? Yes. So now the net water potential of sugar Yes. solution also becomes, it also becomes 0. 0. 0. 0. So where will be the net migration? Where will be the net migration? मैम माइग्रेशन स्टॉप हो जाएगा. No migration. Very good. No migration will occur. नो माइग्रेशन will occur. यहाँ मैं छोटा सा एक कंसेप्ट और दे देती हूँ, फिर हम लोग प्रेशर पोटेंशियल पे आगे डील करेंगे. ठीक है. सो पुश का प्रेशर पॉजिटिव है, तो उसकी वजह से तुम्हारा वाटर पोटेंशियल में इधर ये पॉजिटिव हो गया, उसकी वजह से क्या हो गया, नेट माइग्रेशन 0 हो गया. सो इन द कंडीशन वेयर इक्विलिब्रियम विल बी मेंटेन्ड, सो बोथ सॉल्यूट पोटेंशियल, or this is also known as osmotic potential, and pressure potential, they need to be equal, and we understand that they are opposite in magnitude. So mu s minus mu s is equal to mu p. So mu p value has to be positive, and if the value is exactly equal to the solute potential, then it will balance the pressures, and the net pressure water potential of the solution will be 0. So when net value is 0, there will be no migration. ठीक है, ठीक है बेटा. Now Yes, ये ma'am. मैं थोड़ा सा इरेज कर दूं यहाँ से. Yes, ma'am. Now we exert pressure, and this pressure is 5 magnitude. So we have mu W is equal to mu S plus mu P. So mu S was mu S was -3, क्योंकि पहले प्रेशर एटमॉस्फेयर वाला था ना. सो दिस विल बी -3, दिस विल बी +5. तो अब क्या हो जाएगा, द प्रेशर विल बी +2. ठीक है ना बेटा, ठीक है. और इसका कितना है, Yes, ma'am. इसका कितना है, प्योर वाटर का जो प्रेशर पोटेंशियल है दैट इज 0. वाटर Zero. पोटेंशियल 0 है. और अब तुमने क्योंकि पिस्टन से प्रेशर और अप्लाई कर दिया है, एक्सटर्नल प्रेशर तुमने और अप्लाई कर दिया है, जिसका मैग्नीट्यूड +5 है, तो +5 मैग्नीट्यूड होने के वजह से वाटर पोटेंशियल जो तुम्हारा ये इन्वर्टेड फनल के अंदर का है, दैट बिकम्स +2. सो माइग्रेशन विल बी हाई पोटेंशियल, हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल. ठीक है. अब नेट माइग्रेशन अंदर नहीं होगी बेटा. नाउ नेट माइग्रेशन विल नॉट अकर इनसाइड. ओ सॉरी, मेरा सारा ही चला गया, 1 मिनट. नेट माइग्रेशन विल नॉट अकर इनसाइड, बट नेट माइग्रेशन विल बी नाउ अकरिंग, क्योंकि अब अंदर का वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, तो नेट माइग्रेशन विल बी इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, ये क्लियर हो गया, Yes, ma'am. ये क्लियर हो गया. ठीक है. नाउ कमिंग टू Yes, ma'am. इम्पोर्टेंट फिनोमिनन ऑफ what is osmosis. Beta, what is osmosis? Across a semi permeable membrane. The movement of हाँ बोलो 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 बेटा, बोलो बेटा बोलो. molecules from higher concentration to lower concentration with the help of semi-permeable membrane. सेमी The flow of solution from higher concentration to lower concentration बेटा with the ये help थोड़ा of थोड़ा semi-permeable थोड़ा membrane. थोड़ा और बोलो. हाई कंसंट्रेशन क्या फ्लो ऑफ किसका, सबसे Flow पहले of solution. नहीं बेटा, Flow एक 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 बेटा, solute. बेटा रुको 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 Concentration रुको of solvent, ma'am. बेटा रुको 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 रुको. बिफोर गोइंग इनटू ऑस्मोसिस, पहले मुझे ये बताओ
मेम्ब्रेन की क्या क्या खूबियां होती हैं, ठीक है। मेम्ब्रेन की क्या क्या खूबी है, अगर हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मैम कह वो रहे हैं, सेलेक्टिव। हाँ, यस मैम। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल, ओके, इट इज यस मैम। selectively permeable. What do we mean by मैम वो selectively? सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को मूव करने की। हाँ बेटा रुको, सेलेक्टिवली मैम देखो सेमी परमेबल का मतलब है सेमी इट विल अलाउ ओनली सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। ओनली सॉल्वेंट, ठीक यस है। मैम तो मूवमेंट ऑफ सोल्यूशन नहीं बोलेंगे यस हम बोलेंगे मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। नाउ इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल, दैट मीन्स इट ऑल्सो अलाउज सम सेलेक्टिव solutes. How? Now let's say this is a semi यस permeable membrane, ठीक है। So in this membrane, let's say इस ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, सी वाटर मॉलिक्यूल दे कैन फ्रीली मूव इन एंड आउट, ठीक है। बट फॉर बट सेल, यस हाँ बोलो बेटा। बट occur in ma'am other liquid and even gases. यस दे कैन इजीली मूव, गैसेस थोड़ी बहुत मूव कर जाएंगी, ज्यादा नहीं, डिफ्यूजन से मूव कर जाएंगी, Yes ma'am. गैसेस मूव कर जाएंगी, वेरी गुड, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्यूट के लिए क्या होगा, देयर विल बी चैनल्स। Yes ma'am. तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से क्या क्या मूव कर जाएगा, सॉल्वेंट मूव कर जाएगा, ठीक है, सॉल्वेंट मूव कर जाएगा, इसको हम कहते Yes. हैं ऑस्मोसिस। जब हम गैसेस का Typical. एक्सचेंज करेंगे बेटा, उसको हम कहते हैं Yes. डिफ्यूजन। Osmosis. डिफ्यूजन, गैसेस डिफ्यूज होती अरे हैं, sorry. गैसेस Fusion. एक सरफेस से दूसरे सरफेस में Yes. डिफ्यूज होती हैं, हम डिफ्यूजन पे थोड़ा बाद में आएंगे, ठीक Yes. है। अभी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, और सेमी Okay. परमेबल मेम्ब्रेन से हम बात करते हैं इसकी, उसके पहले वाले हम एक बार पहले वाली स्लाइड में एक बार दोबारा चलते हैं, ठीक है। अब हमने बात की है कि हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि तुम्हारा ऑस्मोसिस के Yes. फिनोमेनन में, मान लो यहाँ पर तुम्हारा ठीक है, दिस सॉल्यूशन इज लेट से हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक से व्हाट डू वी मीन, हाइपोटोनिक से वी मीन मोर सोल्यूट, क्यों भाई, यस मैम। क्या? हाइपोटोनिक मीन्स लेस सोल्यूट, Yes ma'am. ठीक है। वाटर पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा, वाटर मैम हाइपोटोनिक का। हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक का वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ज्यादा होगा. हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक का कैसा होगा, नेगेटिव। यस Yes मैम। ma'am. तो माइग्रेशन किधर होगा, हाइपोटोनिक टू हाइपोटोनिक, हाई टू लो, ठीक है बेटा। अब देखो तुम्हारा क्या इसमें क्या क्या हो गया, Yes सॉल्यूट, ma'am. अगर सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन पे अगर हम चले तो हम इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन पे चले तो ए में कम है, बी में ज्यादा है, ठीक है। वाटर की कंसेंट्रेशन पे चले वाटर मॉलिक्यूल में तो ए में ज्यादा है, ए हैज मोर एंड बी हैज लेस। वाटर पोटेंशियल के हिसाब से चलें तो ए का ज्यादा है, बी का कम है। और अगर हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक में चलें तो इसका हाइपो है और इसका हाइपर है, ठीक है। सो मूवमेंट हाइपो टू हाइपर, मूवमेंट हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल, मूवमेंट हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल, और इस केस में जो तुम्हारा सॉल्यूट जिसमें कम है उससे ज्यादा की तरफ चलेगा, ठीक है। एग्जैक्टली बेटा यही फिनोमेनन ऑस्मोसिस में लगता है, ठीक है। यहाँ पर ऑस्मोसिस हम लोग कवर करेंगे, थोड़े और कंसेप्ट Yes. कवर कर ले, फिर ऑस्मोसिस में डिटेल में चलेंगे। एक यहाँ पे क्योंकि ये बीकर वाला डायग्राम बना हुआ है, हम लोग थोड़ा सा इसमें इमिट नहीं रहा, ठीक है, थोड़ा सा हम इसमें एक कंसेप्ट और देख लेते हैं। ये जो नॉर्मल अभी हमने एक इस मूवमेंट की बात की, ये समझ में आ गया बेटा, हैव यू अंडरस्टूड दिस, ये अभी हम इसको यस मैम।
+5 के जगह लेट्स टेक इट एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी हम इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे लेते हैं। तो बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अगर हम लेंगे इसको तो क्या होगा, इसमें कैसे होगा? इफ वी टेक इट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर वी हैव नॉट अप्लाइड एनी प्रेशर, हमने पिस्टन से कोई प्रेशर अप्लाई नहीं किया। सो लेट्स रिमूव दिस पिस्टन फॉर द टाइम बिंग। क्या क्या होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के केस में? मैम प्योर वाटर मूव करेगा शुगर सोल्यूशन के टुवर्ड्स। प्योर वाटर मूव करेगा शुगर सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है, क्योंकि बीच में इसके परमेबल मेम्ब्रेन है। तो प्योर सॉल्यूशन जो शुगर सॉल्यूशन की तरफ मूव करेगा उसको हम एज सच ऑस्मोटिक मूवमेंट कह सकते हैं, ठीक है। तो नेट माइग्रेशन विल बी फ्रॉम प्योर वाटर टू शुगर सॉल्यूशन till both the osmotic potentials are equal। तो इस शुगर सॉल्यूशन की तरफ नेट माइग्रेशन होगा, क्योंकि अभी हमने ऑस्मोसिस डिस्कस किया है मेम्ब्रेन के थ्रू, तो दिस कैन बी कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। ओके, वी हैव अप्लाइड प्रेशर ऑफ +3। तो क्या हो रहा था when we applied pressure of +3, what was happening? नथिंग मूवमेंट नहीं होगा No मैम किसी तरह का। migration, no migration। Now you have applied pressure Yes, of ma'am. +5, what is happening? सोल्यूशन का मूवमेंट हो रहा था प्योर वाटर के शुगर टुवर्ड्स। से प्योर वाटर की तरफ, वाटर बेटा सोल्यूशन नहीं मूव करता, वाटर ही मूव करेगा। शुगर से प्योर वाटर की तरफ कौन मूव कर रहा था? वाटर Water मॉलिक्यूल्स। migration. जब प्रेशर तुमने इसमें बढ़ा दिया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बढ़ा दिया, और इतना बढ़ा दिया कि उसने सॉल्यूट पोटेंशियल को ओवरकम कर लिया, तो नेट माइग्रेशन तुम्हारा जो हुआ वो अंदर से बाहर की तरफ वाटर मॉलिक्यूल का हो गया, ठीक है। पहले कंडीशन को हम कहते थे, क्या कहते थे? ऑस्मोसिस। इसको हम कहेंगे, Yes, ma'am. इसको हम कहेंगे Reverse osmosis. रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। इसको हम कहेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। ये क्लियर है बेटा? अब देखो अपने Yes, घर ma'am. में जो फिल्टर होता है उसमें बेसिकली रिवर्स ऑस्मोसिस का फिनोमिनन लगता है। अब तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, जिसमें पानी को प्रेशर के अंडर में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर का प्रेशर लगा के उसका पोटेंशियल बढ़ा के उसको पानी के मॉलिक्यूल्स को बाहर मूव करा दिया जाता है, और बाकी जो इम्प्योरिटीज रहती है वो अंदर ही रह जाती है, ठीक है। सो दिस कंसेप्ट इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Okay, so let's move further. Now, if you apply suction over here, अगर तुमने यहाँ पे प्रेशर पंप लगा दिया है and you are applying suction, तुमने क्या किया है? टेंशन लगा दिया है। इसको बहुत ध्यान से समझना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तुमने टेंशन लगा दिया है, तो प्रेशर तुमने क्या किया है? तुमने पुल करना शुरू कर दिया है, वैक्यूम लगा दिया है। सक्शन मतलब वैक्यूम लगा दिया है, ठीक है। वैक्यूम लगाने के बाद क्या होगा? जितने प्रेशर से तुमने वैक्यूम लगाया है, मैं थोड़ा सा मिटा रही हूं ये बेटा, ये क्लियर था ना? मैं सारे वीडियो के लिंक्स भी क्लासरूम में अपलोड कर दूंगी। जब तुमने सक्शन लगा दिया है, सक्शन का जो Yes. सक्शन का जो प्रेशर होता है बेटा, सक्शन देखो मैंने कल भी बताया था, सक्शन का प्रेशर जो होता है वो होता है नेगेटिव। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के उसमें तुम अगर सक्शन लगाओगे तो सक्शन का प्रेशर नेगेटिव होता है, ठीक है। मान लो तुमने इसमें नेगेटिव -2 लगा दिया, -2 का सक्शन लगा दिया, तो अगेन कंप्यूटिंग दिस इक्वेशन क्या हो गया बेटा, जल्दी से बताओ। योर सॉल्यूट पोटेंशियल वाज -3 and your suction pressure potential is -2, overall potential becomes -5। क्यों भाई? overall potential becomes
5. -5, ठीक है। थोड़ा सा ये ऑन ही रखना अपना, बीच बीच में बोलते रहो तो मुझे पता लगता है कि तुम लोग समझ रहे हो कि नहीं। ओवरऑल पोटेंशियल बिकम्स Yes. -5। नेट माइग्रेशन, Yes. नेट माइग्रेशन 0, इसका 0 है, इसका -5 है। नेट माइग्रेशन किधर होगा? इधर से इधर होगा। ये क्लियर है बेटा? Ma'am, 0. नहीं बेटा, देखो प्योर वाटर का, देखो प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल Yes, ma'am. 0 है। तुमने प्योर वाटर पे तो कोई सक्शन या प्रेशर लगाया नहीं है। प्योर वाटर के प्योर टूवर्ड्स वाटर का तो 0 ही है ना, प्योर वाटर का तो 0 ही है, ठीक है। इधर तुमने सक्शन लगा दिया है, पानी अब चढ़, तुम्हारा पानी तुम खींच रहे हो, तो नेगेटिव प्रेशर लगा दिया तुमने, ठीक है। पुल का प्रेशर लगा दिया है। देखो पुश का प्रेशर, देखो याद रखना बेटा, पुश का प्रेशर इज पॉजिटिव एंड पुल का प्रेशर इज नेगेटिव। Negative. पुल का प्रेशर इज Yes. नेगेटिव, ठीक है। ये इसलिए Negative. याद रखना क्योंकि प्लांट में तुम्हें 100 मीटर के ऊपर पानी पहुंचाना है बेटा। प्लांट में कि तुम्हें, प्लांट की बॉडी में तुम्हें मिट्टी से 100 मीटर की हाइट तक पानी पहुंचाना है। कैसे पहुंचाओगे? पुल का प्रेशर लग रहा है यहाँ पे, है ना। अभी हम आते हैं इस पे भी। Yes, ma'am. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तुम बहुत ध्यान से समझना तो तुम्हें आगे इसमें आसानी होगी। मैम ये साइड अपना है क्या हुआ? हाँ बोलो बेटा, कौन बोल रहा है? ठीक है। सो पुश का प्रेशर इज पॉजिटिव, पुल का प्रेशर इज नेगेटिव। सो नाउ यू कैन सी, देखो अब बेटा ध्यान से देखो, इसमें सॉल्यूट पोटेंशियल तुम्हारा पहले ही नेगेटिव था, ठीक है, तो वैल्यू तुम्हारे वाटर पोटेंशियल की नेगेटिव थी। साथ ही साथ पुल का प्रेशर आ गया, पुल का प्रेशर भी नेगेटिव था। सो मेकिंग वाटर पोटेंशियल मोर नेगेटिव, you need to remember this, making water potential more negative. So more negative हो गया इसका value, and more negative will be basically the driving force. Difference in water potential will be driving force for movement of water from high potential to low potential, ठीक है। Okay, now going further, now all living cells, all living cells, in all living cells pressure is positive, okay. In dead cells, like we talk about the cells of xylem, the pressure is negative, ठीक है। now you should remember that osmotic potential or solute potential mu s is always negative, ये याद कर सकते हो? हेलो बेटा, कैन यू रिमेंबर दैट ऑस्मोटिक पोटेंशियल और सोल्यूट पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव? कैन यू रिमेंबर दैट? हैं? नाउ ऑस्मोटिक पोटेंशियल और सोल्यूट पोटेंशियल कैन हैव टू वैल्यूज, इट कैन हैव 0 और इट कैन बी नेगेटिव। हेलो, ठीक है बेटा, इट कैन हैव मैग्नीट्यूड ऑफ 0 और इट कैन बी नेगेटिव। प्योर वाटर में सिंस देयर आर नो सॉल्यूट, सो सॉल्यूट पोटेंशियल इन प्योर वाटर कैन बी 0, अदरवाइज कोई भी तुम बाकी मैम सॉल्यूशन, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है।
वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। अब बफरिंग हो रही है मैम वॉइस में। बेटा एक मिनट, अब आ रही है, अब आ रही है। हेलो, नाउ कैन यू हियर? Yes, ma'am. अच्छा, ठीक है। बेटा Yes, ma'am. अब आ रही है ना? चलो ठीक है। No, cut rate. हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आ रही है वॉइस। सो देखो बेटा, सॉल्यूट पोटेंशियल, वैल्यू ऑफ सॉल्यूट पोटेंशियल कैन बी जीरो। वैल्यू ऑफ सॉल्यूट पोटेंशियल विल बी जीरो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्योर वाटर, ठीक है। एंड वैल्यू ऑफ सॉल्यूट पोटेंशियल कैन बी नेगेटिव। सो नेगेटिव वैल्यू विल कम व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट सॉल्यूशन। Whenever you are talking about solution, the value of solute potential will be negative. Now value of water potential can be, क्या क्या हो सकती है? It can be negative, it can be zero, और जीरो। and it can be, अभी हमने देखा, positive. When it will be negative, पॉजिटिव। हाँ, अब नेगेटिव कब होगी? नेगेटिव तब होगी जब कोई भी सॉल्यूट डिजॉल्व होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ठीक है बेटा। नेगेटिव कब होगी? जब कोई भी सॉल्यूट डिसॉल्व होगा। Yes, ma'am. ध्यान से सुनो, अगर पानी में सॉल्यूट डिसॉल्व है तो सॉल्यूट का सॉल्यूट पोटेंशियल नेगेटिव होगा, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो प्रेशर जीरो होगा, तो वाटर पोटेंशियल की एक्चुअल वैल्यू विल बी नेगेटिव, ठीक है। जीरो कब Zero. होगी? जब Yes. प्योर वाटर में जब ना सॉल्यूट है और ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है। सॉल्यूट है नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जीरो है, तो वाटर पोटेंशियल की वैल्यू जीरो होगी। और अभी हमने देखा ये Zero. अगर हम पुश का प्रेशर अप्लाई करें, जस्ट नाउ वी हैव सीन, अभी इस डायग्राम में वी हैव सीन, जब हम पुश वाला प्रेशर अप्लाई करेंगे और उस प्रेशर की मैग्नीट्यूड विल बी मोर देन सॉल्यूट पोटेंशियल, तो वाटर पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। अभी देखा ना आपने, पॉजिटिव। पॉजिटिव आ जाएगी, ठीक है। और वाटर पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव का मतलब है कि हाई टू लो मूवमेंट, ये नियम है, हाई टू लो, हाई टू लो, तो वैसे ही चलेगा, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ प्रेशर पोटेंशियल ऑल्सो कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो, एंड इट कैन बी पॉजिटिव। जीरो। नेगेटिव, पॉजिटिव। जीरो एंड पॉजिटिव। नेगेटिव कब होगी? पॉजिटिव। पुल, मैम जब पुल करेंगे। वेरी गुड, पुल, टेंशन, एनी काइंड ऑफ टेंशन, पुल, नेगेटिव प्रेशर, ठीक है। तो ये साई पी विल बी नेगेटिव। जीरो कब होगी? जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और पॉजिटिव कब होगी बेटा? मैम पुश करेंगे। जब हम पुश करेंगे। सो वेन एवर यू आर अप्लाइंग एक्सटर्नल प्रेशर अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द वैल्यू ऑफ प्रेशर पोटेंशियल विल बी पॉजिटिव, ठीक है। तो ये तो कोई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यस मैम। नाउ नो इश्यूज, नो प्रॉब्लम, नो मैम। ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। नो मैम। नाउ वी विल टॉक अबाउट सॉयल। हम इसके बाद सॉल्यूशन पे भी चलेंगे। सॉयल, प्लांट, एटमॉस्फेयर, कॉन्टिन्यूम, ठीक है। अब देखो, लेट मी ड्रॉ अ डायग्राम। सो दीज आर व्हाट? This is just a symbolic diagram. Okay, so this is a plant. These are roots, stem, and leaf. ठीक है। अब ध्यान से बेटा, ध्यान से समझना इसको, ठीक है। Now soil, all of you know soil is a very dilute solution. Soil is a very dilute solution. Soil में minerals वगैरह रहते हैं बेटा,
लेकिन सॉइल में एज सच जितना अमाउंट आप प्लांट का लोगे और उतना ही अमाउंट आप सॉइल का लोगे। जैसे आपने एक छोटा सा प्लांट की चीज उठाई हुई है और मिट्टी उठाई है, तो किसमें मिनरल ज्यादा होंगे? प्लांट में ज्यादा होंगे। सो एज कंपेयर टू प्लांट, soil is a very dilute solution. So because soil is very dilute solution, so what will happen? The water potential of soil will be close to zero, not zero but close to zero, है ना? Will be slightly negative, क्योंकि मिनरल्स मिले हुए हैं। तो जो भी पानी है, दिस सॉइल वी आर टॉकिंग अबाउट वेट सॉइल, जिसमें आपने मिट्टी में पानी दिया हुआ है, वेट सॉइल की बात कर रहे हैं। सो वाटर पोटेंशियल विल बी स्लाइटली नेगेटिव, वी कैन राइट स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली नेगेटिव। नाउ रूट्स में व्हाट हैपेंस इज, रूट्स में व्हाट हैपेंस इज, okay, water potential will be negative, Yes, water ma'am. potential will be negative, okay. Then if you consider, Yes, ma'am. if you consider this plant, then there will be intermediate values, there will be intermediate values, intermediate values in different parts, ठीक है। एटमॉस्फेयर में बेटा, एटमॉस्फेयर नॉर्मल है। देखो एटमॉस्फेयर में अगर बारिश हो रही है ना, ह्यूमिडिटी 100% है, ठीक है, तो रेन चल रही है, रेन में क्या है कि एटमॉस्फेयर की ह्यूमिडिटी इज 100%, तो उस वक्त एटमॉस्फेयर का वाटर पोटेंशियल क्या Yes, होगा? ma'am. इट विल बी हाईएस्ट, इसका सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो क्योंकि एटमॉस्फेयर में बारिश हो रही है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बिल्कुल हाई है, एकदम 100% है, तो अब इस समय पे जब एटमॉस्फेयर की ह्यूमिडिटी बिल्कुल फुल है, तो वाटर पोटेंशियल एटमॉस्फेयर का कितना होगा? बहुत हाई होगा, हाई होगा। जब हाई होगा तो प्लांट का ये जो प्रोसेस हम एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपिरेशन का देख रहे हैं, दिस प्रोसेस विल नॉट अकर, ये बहुत स्लो हो जाएगा, स्लो या ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा। इट विल बिकम एक्सट्रीमली स्लो और इट विल ऑलमोस्ट, इट विल स्टॉप, ठीक है। फॉर बिग ट्रीज, देखो हम बड़े पौधों की बात कर रहे हैं, छोटे की बात नहीं कर रहे हैं, फॉर बिग ट्रीज। ना नॉर्मल तो ऐसा एटमॉस्फेयर का रहता नहीं है, नॉर्मल में एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी कम ही रहती है, 100% से तो कम ही रहती है, तो एटमॉस्फेयर का वाटर पोटेंशियल कैसा होता है? ठीक है, एटमॉस्फेयर का वाटर पोटेंशियल इज वेरी वेरी लो, ठीक है। अब तुम्हारा जो Yes, अंदर ma'am. इसका ट्रांसपोर्टेशन टिश्यू है, इसको थोड़ा मोटे से बना देते हैं। इसके अंदर का जो ट्रांसपोर्ट, ये तो मोटा नहीं है, एक मिनट बेटा, इसके अंदर का जो ट्रांसपोर्टेशन टिश्यू है, लेट्स से दिस वन, थोड़ा सा ऑरेंज को इधर बना देते हैं, सॉरी, ये है जाइलम, ठीक है। जाइलम में रेड सेल्स का बना हुआ है, वैसे जाइलम सैप भी बहुत डाइल्यूट होता है, लेकिन जाइलम का वाटर पोटेंशियल भी स्लाइटली नेगेटिव होता है, जाइलम का वाटर पोटेंशियल भी स्लाइटली नेगेटिव होता है। नाउ सॉइल बीइंग वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, ओके। अच्छा, यहाँ पर एक कंसेप्ट और छोटा सा है, जो मिनरल का एब्जॉर्प्शन होता है सॉइल से, मिनरल अब्जॉर्प्शन, मिनरल अब्जॉर्प्शन सॉइल से कैसे होता है? व्हाट दिस ऑल अब्जॉर्प्शन विल अकर फ्रॉम द रूट हेयर, जो भी तुम्हारे सॉइल के ऊपर के रूट हेयर हैं एपिडर्मल सेल्स पे, whole of the processes they are occurring through root hair, okay, and mineral absorption is active, active और passive दोनों हो सकता है, but in majority of the cases it is active. Active means it is absorbed by expenditure of ATP, it is absorbed by expenditure of ATP. Mineral absorption is active. Now what happens is, after the minerals are absorbed, we show minerals with black colors.
आफ्टर द मिनरल्स आर एब्सॉर्ब, अभी हम पाथवे पे चलेंगे, मिनरल जो है वो जाइलम के नीचे एकत्रित होने लगते हैं, दे स्टार्ट कलेक्टिंग, so they provide kind of driving force for absorption of water. When the minerals are absorbed, water follows mineral. Okay, water follows minerals. So cell energy खर्च करती है मिनरल absorption में, पानी मिनरल को फॉलो करता है, पानी मिनरल के साथ साथ अंदर आना शुरू हो जाता है, ठीक है। और सॉइल क्योंकि बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है, वाटर पोटेंशियल भी उसका सपोर्ट नहीं करता, तो वो भी लो टू हाई टू लो ही चलता है, तो उस वजह से भी पानी अंदर आना शुरू हो जाता है, ठीक है। नाउ वाटर कम्स इनसाइड सेल का पोटेंशियल इज यू नो इज नॉट एज सेल का पोटेंशियल, ये सॉरी, जाइलम का पोटेंशियल इज आल्सो स्लाइटली नेगेटिव, तो इसका तो ये जो चलता है यहाँ पे ये आके अब इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है। बेसिकली अब थोड़ा सा हम लोग हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं, बाकी हम लोग इसके मेन टॉपिक में ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ से पानी जो भी चढ़ के जा रहा है ऊपर, जो भी यहाँ पे सेक्शन है, अब यहाँ पे पानी की 3 प्रॉपर्टीज अपने ने पढ़ी थी पहले। वी स्टडीड अबाउट कोहेशन, we studied about adhesion, and we studied about tension. We studied about cohesion, we studied about adhesion, we studied about tension. Now cohesion is, these are the properties of water. Cohesion जो है वो पानी के मॉलिक्यूल्स का आपस में एक दूसरे से बंधना, वाटर इज हाई कोहेशन, इसीलिए तुम हमेशा उसको पानी के फॉर्म में ही देखते हो, अदरवाइज सब मॉलिक्यूल्स अलग अलग होते हैं। पानी का कोहेशन का प्रॉपर्टी हाई होता है। एडेशन का मतलब होता है उसका इंटरेक्शन विद द जो भी उसके आसपास की वॉल है या कुछ है। टेंशन का मतलब है पानी का अपने आप में इकट्ठा होकर रखना, मतलब मॉलिक्यूल का अपने अंदर बंद के रहना, है ना। यहाँ पे एक कंसेप्ट छोटा सा हम लोग और डिस्कस करते हैं। नाउ वी विल इंट्रोड्यूस टू मोर थिंग्स हियर, देन अगेन गो बैक टू दैट डायग्राम। So water potential, we studied water potential is equal to solute potential plus pressure potential plus gravitational potential plus metric potential। अब ये पूरा का पूरा फॉर्मूला पे हम लोग आ जाते हैं। वाटर पोटेंशियल की नॉर्मल उसमें, क्योंकि सिर्फ सॉल्यूट और प्रेशर का ही रोल उस पर नहीं होता है, अदरवाइज फ्यू मोर फैक्टर्स आर देयर विच विल बेसिकली इफेक्ट। वैसे वाटर पोटेंशियल के ऊपर टेम्परेचर का भी इफेक्ट होता है, हम लोग इसकी आगे बात करेंगे। तो सिर्फ सॉल्यूट पोटेंशियल या प्रेशर का ही इफेक्ट नहीं पड़ता है। नाउ इमेजिन थिंग्स आर गोइंग अप इन द जाइलम, ओके, थिंग्स आर गोइंग अप इन द जाइलम, वेयर इज ग्रेविटी गोइंग? बेटा वेयर इज ग्रेविटी गोइंग? ग्रेविटी डाउनवर्ड्स है, ठीक है। तो इसके ऊपर, हेलो,